Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the fifth chapter of class 8th and this is from geography. This chapter name is human resources. Now is lesson in brief. Your first point is importance and development of human resources, composition of human resources, density of population, distribution of population and population change. Now is time to turn up. How does schools help in the formation of humans as resources? To improve school help in the formation of human as resources to improve their skills, knowledge, and education. Let's start with introduction. Human beings are considered the most important resource of a country as they contribute towards its growth and development. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है. क्यों? क्योंकि वो अपना योगदान किसमें देते हैं? उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए. Importance and development of human resources. People are the prime resources of a country because they create wealth by developing natural resources. However, it is important that the size of human population should be commensurate with the natural resources available. In an underpopulated country, the natural resources cannot be fully developed. Such countries encourage immigration, as have been the case with Canada and Australia. Oversized population of country, on the other hand, exploits the available natural resources beyond optimum limits, spelling disaster in the long run. जो कोई भी people होते हैं, जो लोग होते हैं, वो किसी भी कंट्री के लिए उसका प्राइम रिसोर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करके वहां के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं. हालांकि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज है वो जितने भी वहां के नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं उनके आधार पर होना चाहिए. अगर कोई भी कंट्री जिसमें कम लोग होंगे, वहां के जो नेचुरल रिसोर्स है वो बिल्कुल भी कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे. ऐसी कंट्री क्या करती हैं? ऐसी कंट्री के लोग जो होते हैं वो माइग्रेशन करने लगते हैं. ऐसा ही केस जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आया था. और जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसमें क्या होता है कि वो जो वहां की जितनी भी नेचुरल रिसोर्स वहां अवेलेबल होती है उसका बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा उपयोग होने लगता है. द वैल्यू ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स लाइज इन हाउ इज इट यूज्ड बाय मैन. द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनी डिजाइन कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड क्रिएट वेल्थ ओनली when they are wisely used by the people. So people are ultimately the most important of all natural resources. It is they who make use of natural resources and give them a meaning and value. The quality of people is determined by their intelligence, industry, attitude, aspirations, and above all, collective will. A people committed to natural progress can even overcome the inadequacy of natural resources. जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू होती है वो किसमें लाई होती है, किसमें निहित होती है कि किस प्रकार से जो वहां के लोग हैं उनका उपयोग करते हैं. जो नेचुरल रिसोर्स होती है किसी भी देश की, वो उस देश में प्रॉस्पेरिटी लाती है और वहां की वेल्थ बनाती है. कब? जब वहां के लोग उसका उपयोग बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे. तो पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सभी नेचुरल रिसोर्स के लिए. जो नेचुरल रिसोर्स को क्या, नेचुरल रिसोर्स का जो यूज होते हैं उसका यूज करके क्या देते हैं? उन्हें एक मीनिंग और उनको वैल्यू देते हैं. जो क्वालिटी होती है लोगों की वो किसमें डिटरमाइंड होती है? उनकी इंटेलिजेंस द्वारा, उनकी इंडस्ट्री द्वारा, एटीट्यूड, एस्पिरेशन और इन सभी के द्वारा. जो पीपल कमिटेड होते हैं नेचुरल प्रोग्रेस के लिए वो क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्स की इंडस्ट्री में आगे आते हैं. कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. Population composition refers to the total population of the country as men, women, children, working people, and old people. They are often independent on each other. Age structure, sex ratio, literacy, rural urban structure, and occupational structure are some important components of composition.
जो पॉपुलेशन कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, वर्किंग पीपल हो या ओल्ड पीपल हो, ये सभी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट आधारित होते हैं। जो एज स्ट्रक्चर है, सेक्स रेशियो है, लिटरेसी है, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर है या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, वो सब क्या है, किसी भी कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। These are some groups in which a population can be measured. यहाँ पर कुछ ग्रुप दिए जा रहे हैं जिनमें हम पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सेक्स कंपोजिशन, इट मींस द रेशियो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इसका मतलब होता है मेल्स और फीमेल्स के बीच में एक अनुपात। इट इज शोन अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसमें क्या दिखाया जाता है, पर 1000 मेल्स फीमेल्स के नंबर दिखाए जाते हैं। इट शुड बी बैलेंस्ड, ताकि इसका बैलेंस किया जाना चाहिए। द कैलकुलेशन मैन वुमेन रेशियो एक्सप्लेन द फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड्स। जो कैलकुलेशन होती है मैन वुमेन रेशियो की, वो क्या करती है, वो फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड को एक्सप्लेन करती है। इन द कंट्रीज, किसी भी देश में द फीमेल डेथ एक्सीड द मैन क्लियरली इंडिकेट्स द पुअर कंडीशन ऑफ फीमेल। जब फीमेल की डेथ होती है, जो मेल है वो किस में आ जाते हैं, इंडिकेट हो जाते हैं पुअर कंडीशंस में। ऑन द कॉन्ट्रेसी, और अगर कॉन्ट्रेसी पर देखा जाए, वेयर वुमेन आर ट्रीटेड इक्वल टू मैन एंड लेवल ऑफ लिटरेसी इज हायर, जहां पर वुमेन को बिल्कुल मैन के बराबर ट्रीट किया जाता है और लिटरेसी वहां की हायर हो जाती है। द नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन मेल पर 1000। तो जो नंबर होते हैं फीमेल्स के, वो मेल पर 1000 से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। इट शोज द बेटर कंडीशन ऑफ फीमेल्स इन द सोसाइटी। किसको दिखाता है, ये फीमेल्स की बेटर कंडीशन को दिखाता है किसी भी सोसाइटी में। द सेक्स रेशियो इन एशियन कंट्रीज लेस। जो सेक्स अनुपात है, लिंग अनुपात है किसी भी एशियन कंट्रीज में, वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन एशिया वाज 954 इन 1919। जो नंबर है फीमेल्स का पर 1000 मेल में एशिया में, वो क्या था, 1990 में 954 था। इन इंडिया और भारत में क्या था, 929। चाइना में 955, यूरोप कंट्री में वो हाई था, वो 1049 था पर 1000 मेल पर। दिस इज लार्जली ड्यू टू जनरल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल्स थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट लीडिंग टू देयर अर्ली डेथ्स। ये क्या हो गया, ये जनरल नेग्लेक्ट है किसी भी फीमेल का किसी भी कंटिनेंट के द्वारा, जो किस लिए होता है, फीमेल्स की जल्दी मृत्यु के द्वारा होता है। अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग available since 1901 the number of females in India has always been less than the death of males. According to the 2011 census, there are 940 females per 1000 males in India. ये जो फिगर दिखाई गई है ऊपर, इसमें क्या है, 1901 से जो फीमेल्स का नंबर है इंडिया में वो हमेशा कम रहा है, और 2011 की जनगणना के अनुसार पर 1000 मेल पर ये रेशियो 940 था। This is in contrast to the situation in developed countries where females generally outnumber males as they have a higher life expectancy. ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है किसी भी डेवलपमेंट कंट्रीज की, जहां पर जो फीमेल है उनका जो नंबर होता है मेल से हाई होता है। इन इंडिया और भारत में मोर मेल्स आर बोर्न देन द फीमेल्स, फीमेल से ज्यादा मेल्स को जन्म दिया जाता है। This disparity between sexes at the time of birth gets perpetuated due to higher female mortality. ये किस लिए होता है, ये होता है क्योंकि बर्थ के टाइम में जो फीमेल की क्या होती है, बहुत ज्यादा हायर मोर्टेलिटी होती है। मोर फीमेल्स इन इंडिया डाई एट इन्फेंसी एज वेल एज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जो ज्यादातर फीमेल है वो किस में डेथ हो जाती है, उनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 15 से 49 साल के बीच में ही। एडवर्स सेक्स रेशियो इन द पास्ट हैज बीन एट्रीब्यूट टू द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल्स फोटस टर्मिनेशन एंड रिकरेंस ऑफ एम्बिडेंस देन टुक हैवी टोल ऑफ चिल्ड्रन। जो एडवर्स सेक्स रेशियो होता है पास्ट में जो था, वो क्या था, एक प्रैक्टिस था फीमेल फोटो टर्मिनेशन और रिकरेंस का, जिसने क्या किया, हैवी टोल किया चिल्ड्रन को। दिस लेगेसी ऑफ द पास्ट स्टिल हैज इम्पैक्ट ऑन द सेक्स कंपोजिशन। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एज कंपोजिशन किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर मोर देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल बी मोर इन फ्यूचर। अगर कोई भी बच्चा 14 साल से कम है तो वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में फ्यूचर में काम आएगा। द एज स्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कंपोनेंट इन अ पॉपुलेशन। जो एज स्ट्रक्चर है वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कंपोनेंट है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 0 to 14 ईयर्स,
15 to 65 ईयर्स, 65 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा। देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। यहाँ पर जो 0 से लेकर 14 साल की एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, in the developed countries aversion ratio of young population is about 23%, while in the developing countries it is about 40%। जो कि डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका जो एवरेज रेशियो होता है यंग पॉपुलेशन का वो लगभग 23% से होता है, और जो और भी ज्यादा जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें रेशियो 40% हो जाता है। विच एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये जो एज ग्रुप होते हैं अगर इकोनॉमिकली रूप से देखे जाए तो अनप्रोडक्टिव होते हैं और द मोस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इट इज डिपेंडेंट एज ग्रुप एंड इज प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एटसेट्रा। ये जो एज ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, इनकी एजुकेशन का खर्चा होता है, फूड का, क्लोथिंग का खर्चा होता है। द अडल्ट एज ग्रुप कंप्राइज ऑफ पीपल फॉलोइंग इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 65 ईयर्स। जो अडल्ट के एज ग्रुप होती है उसके जो लोग होते हैं वो कंप्राइज होते हैं किसमें, 15 से लेकर 65 एज ग्रुप में। दिस एज ग्रुप प्रोपोर्शनली इज ऑलवेज हायर देन अदर। ये वाली जो एज ग्रुप होती है किसी भी एज ग्रुप से ज्यादा हायर होती है। हालांकि जो इसकी परसेंटेज होती है द मोर डेवलपिंग कंट्रीज, जो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है। द अडल्ट एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल द मोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑल्सो। ये जो एज ग्रुप होते हैं इकोनॉमिकली मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकल भी मोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं। दिस ग्रुप हैज द मोस्ट माइग्रेटिंग टेंडेंसी। इन ग्रुप के पास सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है। सपोर्ट द अदर टू एज ग्रुप as it carries the burden of feeding, clothing and educating the young ones and looking after the old age group। इनके ऊपर एक वर्डन, दो एज ग्रुप का वर्डन होता है, यानी कि अगर मान लो इनके बच्चे हैं यंग एज ग्रुप में तो उनकी फीडिंग, क्लोथिंग और एजुकेटिंग का खर्चा, या फिर जो एल्ड एज ग्रुप में उनके माँ बाप हैं उनको देखने का खर्चा। ऑल द पीपल हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60, जितने लोग ऐसे हैं जो कि 60 या फिर उससे ज्यादा की एज को अटेंड कर रहे हैं, इज मोर देन मेल्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये एज ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल से भी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। पॉपुलेशन ऑफ दिस एज ग्रुप वेरीज रिजाइनली। ये किसी भी एज ग्रुप का अलग अलग रिजाइनली पॉपुलेशन होता है। इट इज हाई इन डेवलप्ड एंड लो इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज में हाई होता है और डेवलपिंग कंट्रीज में लो होता है। लिटरेसी लेवल देखा जाए तो लिटरेसी इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बोथ रीड एंड राइट अ सिंपल मैसेज विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। जो लिटरेसी यानी एक इस प्रकार की ऐसी किसी भी व्यक्ति की ऐसी योग्यता जो लिखने और पढ़ने की, किसी भी सिंपल मैसेज को समझने की किसी भी भाषा में क्षमता रखे। इट इज अ गेटवे टू ब्रिंग द चेंज इन वंस वैल्यू सिस्टम एंड लाइफ स्टाइल। इससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन में या फिर उसके जीवन जीने के तरीके में एक चेंज आ जाता है। इफ अ पर्सन इज एबल टू रीड बट कैन नॉट राइट, ही और शी इज कंसिडर्ड इलिटरेट। यानी कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, तो चाहे वो किस में आएगा, इलिटरेट की श्रेणी में आएगा। लिटरेसी रिफ्लेक्ट्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन बाय व्हिच इट्स क्वालिटी कैन बी असर्टेन्ड। जो लिटरेसी किसको रिफ्लेक्ट करती है, किसी भी सोशल एस्पेक्ट, किसी भी पॉपुलेशन के सोशल एस्पेक्ट को उसकी क्वालिटी के द्वारा रिफ्लेक्ट करती है। देयर इज अ वाइड वेरिएशन ऑफ लिटरेसी रेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एक वाइड वेरिएशन लिटरेसी रेट है। द लिटरेसी रेट इज हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो लिटरेसी रेट है वो रूरल एरिया के मुताबिक जो अर्बन एरिया है उनका हाई है। लाइकवाइज द फीमेल लिटरेसी इन रूरल एरियाज मच लोअर देन द फीमेल लिटरेसी इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज में फीमेल हैं उनके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण एरिया में फीमेल हैं वो बहुत ही ज्यादा लिटरेसी में नीचे हैं। Higher level of literacy reflects higher level of economic development. The developed and urban economic have higher literacy rate as well as standard of education. जो higher level है literacy का वो क्या reflect करता है, वो higher level of economic development को reflect करता है। The developing economics have low level of literacy and educational development. जो developing economics होती है उसके पास low level की literacy होती है और educational development भी low ही होता है। लिटरेसी रेट इज वेरी हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए, इसका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। और अगर इसी की तुलना में जो देखें डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान, इनका जो फीमेल लिटरेसी है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा हाई नहीं है, ऑलरेडी हाई है। जो फीमेल लिटरेसी है वो मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा लो है। द लिटरेसी रेट इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 18.33% इन 1951 टू 74.0% इन 2011। जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो लगभग 1951 में 18% था और 2011 में 74% है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। The term population density refers to a number of people living per unit area। जो population density होती है वो किसको रेफर करती है? वो एक लोगों के नंबर को रेफर करती है जो कि उस पर यूनिट एरिया होते हैं। Population density भी is usually expressed per square kilometer। जो population density होती है उसको usually expressed किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर के रूप में। The estimated global population in the year 2000 was 6,055 million। जो एक अनुमानित ग्लोबल पॉपुलेशन थी साल 2000 में वो क्या थी? 6055 मिलियन। ह्यूमन पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो अनइवनली किस में डिस्ट्रीब्यूट है? पूरे कॉन्टिनेंट्स में। सम कंट्रीज हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेयर सम हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कुछ कंट्रीज ऐसे होती है जिसमें जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और कुछ ऐसी होती है जिसमें पॉपुलेशन बहुत लो होती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो एवरेज डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो पूरे विश्व में लगभग 45% पर स्क्वायर किलोमीटर में होती है। इन्फोबिट्स। इंडिया हैड 1027 million person in 2001, which is 16.7% of the world population, but it has only 2.4% of world land area. India is one of the most populous country in the world, next only to China। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है चाइना के बाद। इंडिया पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन देन द माउंटेन्स, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट लैंड। जो प्लेन्स यानी मैदान है उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है किसके अकॉर्डिंग? माउंटेन, डेजर्ट और फॉरेस्ट लैंड के अकॉर्डिंग। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। लगभग 2011 में जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन की भारत में वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। इट इज हायर देन दैट ऑफ चाइना विच हैड 145% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2017। ये चाइना से ज्यादा है जिसमें 145% पर स्क्वायर किलोमीटर थी 2017 में। Among the most populous 10 countries of the world, India stands third in density, the first and second being Bangladesh and Japan। अगर देखा जाए पॉपुलस 10 कंट्रीज के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में तो जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट पे है बांग्लादेश और जापान में सेकंड में है जापान। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। जो हैवी प्रेशर होता है किसी भी पॉपुलेशन का लैंड पर वो एक सीरियस प्रॉब्लम होता है किसी भी देश के लिए। व्हाट वरीज अस इन द फैक्ट ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। इन 1921 और 1921 में इट वाज ओनली 81% पर स्क्वायर मीटर, बट इन इंक्रीज्ड लगभग 1921 में कितने लोग थे? 81 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और इसके बढ़ते हुए 382% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए 2011 में। The state-wise population density varies from 17% in Arunachal Pradesh to 1029% in West Bengal। जो स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? 17% अरुणाचल प्रदेश से और 1019% वेस्ट बंगाल से। जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें क्या है? डेंसिटी जो है वो 11,297 से लेकर 9,252% पर स्क्वायर किलोमीटर है। विल द डेंसिटी, जो कि डेंसिटी है मिजोरम की, वो क्या है? 52% पर स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये एक लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बी डिवाइडेड एज फिजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पॉपुलेशन को फिजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज नॉट ऑलवेज स्टेटिक। किसी भी लोगों का जो किसी भी एरिया में रहने का
नंबर होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता। द चेंज इन पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो चेंज होता है पॉपुलेशन का उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी कभी एब्सोल्यूट नंबर में या फिर परसेंटेज के टर्म्स में। द फॉर्मूला ऑफ नोइंग वेदर द पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन स्टैटिक इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। कहीं कहीं पर क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कहीं कहीं पर कम हो जाती है, कहीं कहीं पर वैसी ही रहती है, तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। द मैकेनिज्म responsible for spatial change in population or population growth are the difference in birth and death rates as well as migration। ये जो चेंज होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, जो अंतर आता है वो या तो बर्थ या डेथ या फिर किसी माइग्रेशन के जरिए आता है। फर्स्ट देखें तो द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जो अंतर होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में वो क्या होता है, इफ बर्थ एक्सीड डेथ विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक जन्म एक मृत्यु के दिए हुए समय में होता है, देयर विल बी अ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो क्या है वो नेचुरल इंक्रीज है पॉपुलेशन में। ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरे शब्दों में देखें, इट डेथ एक्सीड बर्थ द पोजीशन इज रिवर्स। यानी कि जो डेथ हुई और बर्थ की पोजीशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। देयर विल बी डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज क्रूड डेथ rate, which is related to the epidemics, disaster and prolonged famines. This caused rapid increase in deaths within a country। कभी कभी क्या होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई एपिडेमिक्स हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड फैमिलीज हो जाती हैं, तो उससे क्या होती है, उस एरिया की उस देश की जो कंट्री होती है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। समटाइम्स कम्युनिकेबल डिसीजेस में रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ डेथ। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी आती है जो डेथ में इंक्रीज कर देती है कॉन्सिक्वेंटली। यानी कि अगर एक अचानक अनुमान लगाया जाए, देयर इज रैपिड पॉपुलेशन चेंज, तो क्या है, ये बहुत तेजी से पॉपुलेशन चेंज होता है। वहीं दूसरे शब्दों में देयर इज अ सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सैनिटेशन सिस्टम एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, इट कंटेनली लोअर द डेथ रेट टू मेक अ चेंज इन पॉपुलेशन। अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा तो क्या होगा, सैनिटेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो डेथ रेट है किसी भी पॉपुलेशन का वो कम हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, माइग्रेशन। इट इंक्लूड्स आउट माइग्रेशन एंड इन माइग्रेशन। इफ पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, देयर विल बी चेंज इन पॉपुलेशन। आउट माइग्रेशन लीड टू डिक्रीज एंड इन माइग्रेशन लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो थर्ड कंपोनेंट होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। इसमें क्या शामिल है, आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन। अगर लोग एक जगह से दूसरे एक जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। अगर आउट माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, इन माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन यू रफली डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू रीजन्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? विच आर द डेंसिवली पॉपुलेटेड एरियाज इन एशिया? ये मैंने आपको चैप्टर में से बताया था। हु प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन। विच इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया। नाउ इज इंपॉर्टेंट टर्म्स, बर्थ रेट, द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन ओवर अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन ओवर अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। Density of population, the average number of inhabitants living within a specified unit of area such as a square kilometer. Literacy, it refers to a qualitative attribute of a population and a fairly reliable index of socio-economic development of an area. Population, the total number of person inhabiting a defined region at a particular point of time. Sex ratio, it is an index of balance between males and females in a given population and measured in terms of number of females per 1000 males. क्विक में शब्द देखेंगे, people are the prime resource of a country because they create wealth by developing natural resources. Age structure, sex ratio, literacy, rural urban structure and occupational structure are some important components of population composition. Population density refers to the number of people living per unit area. The mechanism responsible for change in population are the difference in birth and death rates as well as migration. Now it's time to practice. Take the correct option. Area of low density Congo Basin, area of high density China. The estimated population of India in 2011 10 million. Name of the African country which stands at 10th rank of among the most populous country, Nigeria. Next is filling the blanks. People are the
prime resource of a country. China is the most populous country in the world. According to the 2011 census, the density of population in India is 382. The adult group is economically most productive and biological the most reproductive. Next is the literacy rate is higher in developed areas as compared to developing areas throughout the world. Right, true or false? The female literacy is very higher in Muslim countries. False. The estimated global population in the year 2000 was 6,555 million. India is the one of the most populous country in the world next to China. The number of the people living in area is always static. Africa's annual population growth is the highest among the major world regions. Next is explain the following terms. Death rate. Let's see the answer. The number of deaths per thousand population over a given period, usually 1 year. Next है इसमें literacy rate. It refers to the quantitative attribute of a population and a fairly reliable index of socio-economic development of an area. Next है sex ratio. It is an index of balance between males and females. It is in a given population and measured in terms of number of female per thousand males. Next है birth rate. The number of births per thousand population over a given period, usually 1 year. नेक्स्ट और लास्ट टर्म है इसमें एज स्ट्रक्चर. लेट्स सी द आंसर. Age composition is very important in the study of population. If the children below 14 years are more, then the increase in population will be more in future. The age structure is an important demographic component in a population. Next देखते हैं. नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. डिफाइन सेक्स रेशियो. लेट्स सी द आंसर. It is an index of balance between males and females in a given population and measured in terms of number of males females per thousand males. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है how far is it true that humans are prime resource of a country? Explain. People are ultimately the most important of all natural resources. It is they who make natural resources given the meaning and value. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इसमें बर्थ रेट को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद में आप इसमें डेथ रेट को डिफाइन कर देंगे. नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन. द टोटल नंबर ऑफ person inhabiting a defined region at a particular point of time is called population.
Next and long answer type questions. What are human resources? How are they important for a country? इसमें आप लिखेंगे फ्रॉम पीपल आर द प्राइम रिसोर्सेस से स्पेयरिंग डिजास्टर इन द लॉन्ग रन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? लेट्स सी द आंसर। The term population density refers to a number people living per unit area. इतना आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the major factors producing the population change? इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे। फर्स्ट आपको लिखना है सिर्फ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तक। सेकंड आपको लिखना है विद इन ए कंट्री तक। थर्ड आपको लिखना है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लिटरेसी? हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट? लिटरेसी इज डिफाइंड से लेकर आप इसमें लिखेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट तक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स सी द आंसर। पूरे पैराग्राफ को आप इसमें डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एन आंसर। आपको सोचकर आंसर करना है। व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। व्हाई? व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स? हाउ टू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट में क्या करना है? ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द डेंसिवली पॉपुलेटेड स्टेट। जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार आप इसमें और भी स्टेट को डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी टाइम में कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पेस्ट देम इन स्पेस गिवन बिलो। क्रॉस कनेक्ट में आपको क्या करनी है? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। टॉपिक है जिसका इन्वेंशन ऑफ व्हील। थैंक यू स्टूडेंट्स।